we all are we all are special in this world. We are born with certain X factor, or you can say special qualities. So, when we start following someone else, what happens? We forgot those qualities which we are born, and we stop feeding those, building those qualities. So you must respect your individuality. While following someone lifestyle, someone characteristic, you should not forget your own individual qualities, because those qualities makes you special in this world. So you must respect what you are. तो सही बात है। तो डाइट का अगर हम कैसे ध्यान रखें, क्योंकि कभी हम जाते हैं, अगर मेरे को वेट गेन करना है, हमें वेट लॉस करना है, तो एक कोई पर्टिकुलर डाइट है, नॉर्मल डाइट जो आप सजेस्ट करते हैं? जैसे कुछ जगह बोला जाता है कि आप अंडा ज्यादा खाइए, बहुत केसेस में है कि हम एजिटेरियन होते ही नहीं है, हम लोग वेजिटेरियन हैं, तो कोई ऐसी डाइट है जो सब लोग फॉलो कर सके? Yes, this is a very good question, because in Indian society, like 70 to 80%, that's what I go through, people are vegetarian. So, what is the problem with the vegetarian diet? That people think, it is not the truth. People think that vegetarian diet doesn't have a good source of the protein. That is the game is all about. So now in the gym, if you go to the gym, go to a trainer, they will always ask you to go for the protein supplements. But my personal opinion is you should depend maximum on the natural resources of the whatever form you are eating. So when it comes to maintain good weight or lose weight, so one is like maintaining good weight, your diet has to be combination and head. Yes, there are standard, like we divide into two categories. One is the trans fat, which is harmful. Your body cannot digest that. It will remain in your system. And another is the essential fatty acids or saturated fat, which is must for your body. So like when we talk about good fat, you can depend on the nuts. Like almond is there, peanuts is there, even ghee is also good, but the quantity has to be monitored. Apart that, you can go for olive oil, you can go for mustard oil, you can go for, these are the all good fats. So if you are trying to lose weight, do not compromise on the essential fatty acids and good fat. That has to be part of your regular diet. As ma'am was saying about the skin, so fat play a very important role in your glow of your skin. So that you must keep. This is all we are talking about the good fats. Now we talk about the trans fat, which is processed through certain process. Like if you are having a kachori, you must have Rawat wala kachori, all of you. You must have had some time in the life. So, what they do when they are frying those samosas, kachoris, that oil is constantly in that kadai. They don't change that oil. And after certain heating process, it turns out to be trans fat, which your body cannot digest. So, these kind of fat you must avoid. Thank you, sir. What you would have. अब सुहानी मैम, मैं आपके साथ में बहुत टाइम से काम कर रहा हूँ और एक बहुत जबरदस्त सवाल है आपसे कि हम सब की वार्डरोब होती है, मेरे पास में भी है, काफी खचर पचर टाइप की होती है, मैंने अलग अलग चीजें उसमें डाल रखी हैं। मैंने ऐसा खरीदा है तो मैंने देखा कि अच्छा ये प्रभास पहनते हैं, डॉलर पहनते हैं, मैंने खरीद लिया। कुछ मुझे लगा कि मेरे दोस्त पहनते हैं, मैंने खरीद लिया। तो मैं मैम कैसे डिसाइड करूँ, क्योंकि आप एक ड्रेसिंग एक्सपर्ट हैं, मालूम कि मेरा जो बॉडी का फिटिंग है क्या वो डिपेंड करता है उसके अंदर, उसके बॉडी में कपड़े खरीदूं, मेरे कलर के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है? थोड़ा सा अपने को बताइए कैसे हम सेलेक्ट करें। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर हम ड्रेसिंग की बात करते हैं तो ड्रेसिंग में आता है ड्रेसिंग सेंस। अब ड्रेसिंग सेंस में ही वर्ड है सेंस। सबके पास कपड़े होते हैं, सबके पास बहुत अच्छे अच्छे कपड़े होते हैं, दे टेक ब्रांडेड क्लोथ्स ऑल्सो, खूब पैसे खर्च कर देते हैं, बट सबसे बड़ी बात होती है कि उन्हें पता ही नहीं कि हमें हमारे पर
हमारे कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से, हमारे हाइट के हिसाब से, हमारी बॉडी वेट के हिसाब से हम पर कौन सा कपड़ा सूट करेगा। लाइक मैंने बहुत लोगों से डील किया है, आई एम ट्रेनिंग ऑल्सो, मैं देख रही हूँ कि 5,000 के कपड़े ले आए, 10,000 के, बट बोलते मैम हम बाहर जाते हैं और हमें एक सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता कि हम अच्छे दिख रहे हैं। सबसे बड़ी बात होती है उनमें शायद सेल्फ, अगर मेरी साइड के मैम कपड़े मिलेंगे या कम कोच होंगे तो वो प्रोवाइड कराएंगे, बिल्कुल, या मैं मेरी हाइट बहुत कम है उस चीज में ये चैलेंज आता है। ज्यादातर कपड़े जो हम देखते हैं मार्केट के अंदर आते हैं वो मीडियम साइज के होते हैं, या तो किसी तरीके से मैं ये कैसे जज करूं कि मेरे ऊपर क्या अच्छा लग रहा है। या सी सबसे पहले बात आती है, अगर आपका बॉडी वेट बहुत ज्यादा है तो मैं एक सबसे बड़ा सजेशन दूंगी, अगर बॉडी वेट आपने इतना बढ़ा लिया है तो आप उसको कम करें। सबसे पहले बात, अभी मेरे पास एक थोड़े दिन पहले, मैं बोलूंगी नहीं, मेरे पास एक गर्ल आई, शी वॉज 100 kgs एंड शी वॉज टेलिंग मैम मेरे को मेकओवर चाहिए अपना। मैंने बोला सबसे बड़ी आपकी पर्सनालिटी में प्रॉब्लम है आपका वेट। सी मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं खुद भी बहुत थोड़ी पहले पार्टी थी एंड आई वॉज वेरी कॉन्शियस, मैंने खुद बहुत ज्यादा वर्कआउट किया, डाइट किया एंड देन आई गॉट फिट। तो मैं सबसे पहले लोगों को ये बोलूं कि अगर आपका वेट ज्यादा है, अपनी कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, किसी के लिए भी नहीं, खुद के कॉन्फिडेंस के लिए अपना वेट रिड्यूस करें। अगर आपका एक्सरसाइज के बाद भी वेट कम नहीं होता है, सपोज बाय चांस कोई प्रॉब्लम है तो आप क्या करें। अब आप देखिए, अगर आपके साइज के कपड़े नहीं मिलते तो सबसे बड़ी बात, आप अच्छे टेलर के पास जाइए, बेस्ट टेलर जो आपको लगता है कि मेरे अकॉर्डिंग वो कपड़े बना सकता है, जो मेरी बॉडी पे बहुत अच्छा लगेगा। अब मोटे हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्शन भी डार्क है, तो आपका जो पर्सनालिटी वो है, पर आप उसको किस तरीके से बेटर वे में प्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज ऑल पर्सनालिटी। आपसे एक सवाल, जैसे हम देखते हैं बॉलीवुड में हम देखते हैं या हॉलीवुड में देखते हैं, सबसे ज्यादा स्पेशल फीचर अगर कहीं पे भी होता है लुक चेंज करने में, दैट इज अबाउट हेयर, और यही एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है हमारे अंदर। तो कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं आप बता सकते हैं, जैसे कुछ मेरे को आइडिया है, जैसे हेयर फॉल का एक प्रॉब्लम होता है, डैंड्रफ का होता है, तो कुछ ऐसे मेजर चैलेंजेस जो आप फेस करते हैं। बिल्कुल, हम लोग है ना, जैसे अक्सर हमारे पास आते हैं कि मैम मेरा हेयर फॉल, डैंड्रफ, बाल बहुत थिन है, मुझे वॉल्यूम चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास हम लोग है ना प्रोडक्ट्स भी यूज करते हैं। और जिन लोगों को अगर बहुत ज्यादा डैंड्रफ है या हेयर फॉल है तो हम उनको होम केयर एंड ट्रीटमेंट्स हैं, आजकल सारे तरह के ट्रीटमेंट्स आ चुके हैं। अगर आप लोग होम केयर भी करना चाहते हैं तो होम केयर भी होता है। मैम इसमें जैसे प्रोडक्ट की मैं बात करूं तो बहुत कंफ्यूजन रहता है। हेयर फॉल की अगर हम बात करें, या मेरे बाल जरूरत से पहले सफेद हो रहे हैं, ग्रेइंग हो रही है मेरे बालों में, तो क्या रीजन रहता है? मतलब हेयर फॉल ज्यादा हो रहा है, ग्रेइंग हो रही है, और मैं भी 25 साल का हूँ। वैसे मैं फनी बात बोलती हूँ, जनरली लोग ये कहते हैं कि मैडम कलर कराने से मेरे बाल सफेद हो गए, ग्रे हो गए, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपकी हेरिडिटी है, आपके पेरेंट्स को अगर ये प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जेनेटिक है, बालों में ग्रे हेयर्स होना जेनेटिक है, हेयर जो है ना पेरेंटल प्रॉब्लम, बाल थिन होना, ग्रे होना, ये सब पेरेंटल है। तो इसके लिए आप उनके पास आप बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं, तो ट्रीटमेंट्स के अकॉर्डिंग अपन ग्रे हेयर्स को रोक सकते हैं। आप जैसे लॉरेल का भी है मेरे पास प्रोडक्ट, पतंजलि आ गया आजकल, उसके बाद हेड एंड शोल्डर है, तो पतंजलि का अपन बात करेंगे, लेकिन ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो आप रेफर करते हैं हेयर्स के लिए? मैं अगर बजट पे जाऊं तो पतंजलि द बेस्ट है ना, और अगर आपको लगता है कि नहीं हमको और अच्छा प्रोफेशनली चाहिए तो लॉरियल है, रस्क है, आजकल बहुत ब्रांड्स आ चुके हैं। जो रस्क के बारे में तो लोग जानते भी नहीं है, रस्क एक बहुत अच्छा ब्रांड मार्केट में भी आया हुआ है, और उसका अगर कलर भी यूज करते हैं तो लॉन्ग लास्टिंग कलर है। और कलर में जैसे हम देखते हैं तो आजकल गोल्डन ने 30 रुपए में निकाल दिया, तो अमोनिया होता है बहुत ज्यादा, कुछ किस तरह के हैं अमोनिया से बहुत नुकसान होते हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो अमोनिया फ्री हो आप घर पे यूज कर सकें? पहले तो मैं बोलूंगी कि अमोनिया फ्री ऐसा कुछ भी नहीं है। अपन लोग सोच लेते हैं कि अमोनिया फ्री है, ये कलर में अमोनिया नहीं है, कुछ तो इंग्रेडिएंट्स होते हैं तभी वो बालों को ब्लैक करेगा। दूसरा, अपने को ये पता होना चाहिए, हम लोग क्या करते हैं जब बाल वॉश करते हैं उनको ये नहीं पता कि हमें कौन सा शैम्पू यूज करना चाहिए जिसे हमारे बालों में हमने कलर एप्लीकेशन किया है तो कब तक वो रहेगा। हमने क्या किया, कलर तो लगा लिया, लेकिन हमने शैम्पू लगाया जो हम नॉर्मल लगा देते हैं, जबकि हर चीज के लिए शैम्पू होते हैं। दूसरा ये है कि अगर अमोनिया फ्री की बात करें तो
आजकल लॉरियल में अमोनिया फ्री है, गोदरेज में ये डाई में अमोनिया फ्री नहीं होता है, ये बोला जाता है, लेकिन डाई हार्मफुल है। लेकिन कलर में ये है आजकल अमोनिया फ्री हो गया, जिसमें 9 वॉल्यूम या 6 वॉल्यूम, मैं अपनी भाषा में बात करूं तो 6 वॉल्यूम इज अमोनिया फ्री। व्हाट इज मीनिंग बाय वॉल्यूम? वॉल्यूम का मतलब होता है, जैसे हम लोग, मैं आपको बताती हूँ, कलर बनाने का एक तरीका होता है। आप मार्केट से कलर लाते हैं, उसमें डेवलपर आता है, एक व्हाइट रंग की शीशी आती है। किसको पता है कलर, किसने देखा है कलर का? जो बॉक्स आता है ना, उसमें एक ट्यूब आता है, एक लिक्विड फॉर्म में एक लोशन आता है। जबकि ट्यूब इतनी बड़ी होती है और लोशन बहुत कम होता है। मेरे ख्याल से सबको पता होगा ना। अच्छा, हम सैलून पे जाते हैं तो देखते हैं कि वो बड़ा आराम से कलर को मिलाता है, उसमें डेवलपर खूब सारा डाल देता है। जो व्हाइट लोशन होता है उसको डेवलपर बोलते हैं। लेकिन जब मार्केट से लेकर आते हैं तो उसमें डेवलपर तो बहुत कम आता है और ट्यूब हमारा बहुत बड़ा आता है, तो हमको रेशो तो पता नहीं होता। हम लोगों को क्या है ना, जितना हमें कलर लेना होता है उसके हिसाब से ही हमको डेवलपर लेना होता है, उसका रेशो मिला के हम लोग कलर एप्लीकेशन करते हैं। मैम, अब देखिए मेरा पेज है, मेरा पेज गोल है, राउंड है, कुछ होते जिनका पेज ओवल होता है, तो हम कैसे अपनी हेयर स्टाइल चेक करें कि मेरी पर्सनैलिटी को ये सूट करती है? और एक जैसे आपसे डिस्कशन हुआ था कि हेयर कट और हेयर स्टाइल, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, दोनों एक जैसे होंगे या दोनों में डिफरेंस है? बिल्कुल डिफरेंस है। अच्छा देखिए, मैं बताती हूँ, अगर आप किसी सैलून जाते हैं और वहां बोलेंगे मुझे हेयर स्टाइल चाहिए, तो वो अगर अच्छा सैलून होगा वो पूछेगा आपसे कि आपको हेयर कट में स्टाइल चाहिए कि हेयर स्टाइलिंग चाहिए। दोनों के एक्सपर्ट अलग अलग होते हैं। जो हेयर कट करते हैं वो हेयर ड्रेसर होते हैं और जो स्टाइलिंग करते हैं वो हेयर स्टाइलिस्ट होते हैं। तो दोनों में डिफरेंस होता है। हेयर कट जब होता है उससे भी अपना लुक चेंज होता है और हेयर स्टाइल से भी लुक चेंज होता है। जब अपन कोई ड्रेस पहन रहे होते हैं, जब उनको मेकओवर करना होता है, तो उसमें हेयर स्टाइल बनती है, मेकअप होता है और ड्रेसिंग होती है। और हेयर कट से हेयर कट का अलग से होता है। तो मैं पहले अपना हेयर कट कराऊं या फिर हेयर स्टाइल? नहीं, पहले अपना हेयर कट होगा, उसके बाद स्टाइलिंग होगी। थैंक यू मैम। सर, एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है आजकल, जब हम देखते हैं कि बच्चों में फैट बहुत ज्यादा है, लोगों में बहुत ज्यादा है, तो ऐसी कौन सी मेजर टेक्निक है या तरीके हैं जिनसे आप यूज करते हैं, मैं अपने मोटापे को कम कर सकता हूँ, मेरा वेट अगर ज्यादा है, आप कौन सी ऐसी टेक्निक या एक्सरसाइज सजेस्ट करते हैं? Basically, you need to take care of your intake. So, when you trying to lose weight, you need to balance between your outtake and intake. So, when you try and lose weight, your intake has to be low and your outtake has to be more. So, to increase your outtake, you need to go into certain kind of physical activity. So, basically, right now we are talking about the weight loss. So, weight loss is straight related to your cardiovascular activities. So, you need to engage in certain kind of cardio activities. So, when I say cardio activity, what does it mean? Anybody can tell me? Whatever you know, you feel like about the cardio activities. तो मतलब होता है कि कार्डियो क्या होता है, पूरा बड़ा डिफरेंस आता है। वेट मैनेजमेंट और कार्डियो अलग अलग कम भाग में होता क्या है? No, it is very much part of the weight management. That's what I'm trying to explain you. Like outtake and intake has to be balanced. That is the weight management. So if your outtake and intake is balanced, you will not put on weight at all. But if this balance is not there, definitely you're gonna put on weight. तो आपको तो सिटिंग बहुत ज्यादा है, बच्चे भी 8-8 घंटे पढ़ते हैं, IIT IIS के लिए प्रिपेयर करते हैं। बड़ों की बात करें तो डायरेक्ट ऑफिस में जाते हैं, 8 घंटे बैठना, कंप्यूटर बहुत ज्यादा हो गए, स्मार्टफोन ज्यादा हो गए, हमारी एक्टिविटीज कम हो गई है, तो हाथों में अपने बॉडी कम ही रहता है, फिर भी वेट बढ़ रहा है। Because आपका outtake कम हो गया है ना आजकल। अब देखिए physical activity is hardly there. We or either we are driving or we are riding bike, so that there is no physical activity, and all the time you are studying, then you are sitting all the time. If you are in the office, again you are sitting on the laptop or working on the working station. So for that, like again I will come on the cardio. See, this is very important for your well-being and for your weight management, for your fitness. So whatever activity which is non-stop, I said non-stop, it has to be non-stop, at least for 20 minutes.
So these are the two standard. First is non-stop. Second, duration has to be at least 20 minutes. That is the minimum standard. So now, any activity you do, these two principles you need to follow. First, what? It has to be non-stop. Second, it has to last at least 20 minutes. Now, it could be walking, it could be step climbing, it could be dancing, it could be any kind of activity, it could be cycling, but that activity should last for at least 20 minutes. If you are able to do that, it will give you weight management, it will give you good fitness, or it will give you energy balance. These are the three principles you need to follow. और कि बच्चों के आज के अंदर वेट बहुत ज्यादा गेन हो रहा है, चाहे ओबेसिटी बहुत ज्यादा है, तो हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे जब बाहर जाएं तो कोई उनका मजाक उड़ाए। तो क्या बच्चों के लिए कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज हैं जिनके थ्रू हम उनका वेट कम करवा सकते हैं? You will take that. What she wanted to ask me. Sir, I would like to ask one question. Like, if we are exercising for long time, like 1 year, 2 years, and body gets used to of that similar exercise, so we get stuck up to one particular weight, and after doing lot of exercise, also we reduce inches, and sometimes we are not able to reduce weight. So, can you tell what's the reason and what we can do to overcome that? Because it gives psychological impact that now we don't need to do. It happens. Very true, very true. It happens with everyone. So for that, like जब हम रोजाना खाना खाते हैं और मैं रोजाना आपको आलू की सब्जी मिले, what will happen? What will happen? You will get bored. So same way when we keep doing the same kind of physical activity, your system will get bored. So you need to add some spices in that you have talked. So your body keep responding. So for that, two things are there. Like let's say you're going for a walk. You're walking for 3 kilometers a day or maybe 5 kilometers a day. So what you need to add that spice or keep your workout effective. What you need to do, let's say I'm going for a walk for 5 kilometers and I'm taking 40 minutes to complete that. So now you need to do two things. Keep reducing time for the same distance. So let's say I am doing today in 40 minutes. My goal is to reduce 30 seconds a day. Right? So it will keep challenging your system and your system keep responding. This is the one thing. Let's say you are not comfortable with covering more distance at the same time. What you can do, you can increase the distance at the same time. Getting my point? So both way, what you are doing, you're keeping that activity challenging for your system. So your system will keep responding. What happens like every day people go for the walk and he will say, "Yeah, आज मैंने 6 किलोमीटर walk किया, पर मेरा that appearance is same." Because after certain time, your body will become used to that activity. And it starts responding, it's just burning the calories you generally burning every day. It is not challenging for you. So whatever energy is coming, it's just coming from the glucose resources. And our goal is to utilize fatty tissues for the energy, not just the glucose. Because glucose is like if I keep burning, my glucose level will come down and I will feel hungry again, I will eat. So it is like vicious circle you fall in. So whatever activity you decide, like I have given the example of the walking, you can keep the same principle in the cycling, you can keep the same principle in the steering. कि यार मैंने अभी 20 मिनट में 400 stairs किए, add 10 stairs in the same time, so that workout will keep effective. मैम आपके एक सवाल था मेरा दोबारा से, जैसे हमने पहले बात करी, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं बाहर जाता हूँ तभी मुझे वैसे पूछने की जरूरत है, या जब मैं घर में हूँ तब भी मुझे वैसे पूछने की बहुत जरूरत है? सबसे बड़ी बात है, जब भी हम ड्रेसिंग की बात करते हैं, ऑलवेज अकॉर्डिंग टू पर्पस एंड ओकेजन. आपको पता होना चाहिए कि आप किस पर्पस के लिए तैयार हो रहे हैं. अगर आप घर पर हैं तो आई नो कंफर्टेबल है ना जरूरी है, बट समटाइम्स आपकी आदत भी बन जाती है. आप जैसे घर में वैसे ही आप बाहर चले जाते हैं, तो थोड़ा बहुत आपको सोचना चाहिए कि घर पर भी हम
कपड़े पहने, चाहे बॉक्सर्स और टी शर्ट ही पहने, तो क्या वो हमको अच्छी लग रही है हम जब पहन रहे हैं तो? हाँ, हमें तो अच्छी लगती है, बाहर वालों को अच्छी लगे उसके लिए क्या करें? See, वो आपको देखिए, आप कहीं जाते हैं तो आपको लोग कॉम्प्लीमेंट करते हैं, अगर आपको कभी कोई बोलता है कि यार यू आर नॉट लुकिंग गुड, सो इट मीन्स कि आप में कोई कमी है। तो बहुत सिंपल, मतलब मैं सिंपल कलर सेलेक्ट करूँ या घर के अंदर, जैसे मेरे को कोट वाली टी शर्ट मैंने देखी, या बच्चे होते हैं या फिर यंगस्टर्स होते हैं जो कार्टून पहनना चाहते हैं ताकि वो एनिमेटेड दिखे, रणवीर सिंह को फॉलो करते हैं वो लोग, या तो किस तरह से मैं सेलेक्ट करूँ? दो तरह की चीजें हैं, हाँ। जैसे एक तो मैं घर पर हूँ और एक तो मैं सोने जा रहा हूँ, सोते समय भी ड्रेसिंग सेंस का कंफर्टेबल होना जरूरी है मेरे लिए। घर पे सबसे ज्यादा तो कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, मैं खुद भी मतलब पहनती हूँ कंफर्टेबल कपड़े घर पे, बट स्टिल हाँ हम सोचते हैं कि घर पे भी पहन रहे तो अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ कपड़े पहने। इफ यू आर बाइंग अ नाइस सूट ऑल्सो यू शुड थिंक कि क्या ये मेरे पे अच्छा लगेगा, या जब मैं रात को फेस वॉश करूंगी, ब्रश करूंगी एंड देन आई विल गो टू स्लीप, विल आई लुक गुड? मैम ये कॉम्प्लेक्सिंग की बेसिस पे मैं कैसे सेलेक्ट करूँ? मान लीजिए मैं कामला हूँ, आपका कलर बहुत फेयर है, तो मैं कौन सी कलर सेलेक्ट करूँ जो मेरे ऊपर सूट करते हैं? बेसिकली अगर आप डार्क स्किन टोन है आप लिख भी सकते हैं कलर्स, लाइट ब्लू, अगर आपका कलर थोड़ा सा डार्क है तो आप लाइट ब्लू कलर के लिए जा सकते हैं। लैवेंडर कलर होता है, हैव यू डू यू नो लैवेंडर कलर? नो, इट्स लैवेंडर इज लाइट पर्पलिश कलर में आता है, बिल्कुल लाइट टोन के अंदर, बहुत अच्छा लगता है। डार्क टोन के लोग हैं उसके साथ अगर ग्रे का कॉम्बिनेशन पहनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। बेबी पिंक, इफ यू आर लिटिल डार्क, बेबी पिंक कलर विल लुक गुड ऑन यू। इफ वी टॉक अबाउट कलर, पीच कलर भी आप लोग पे काफी सूट करेगा। मस्टर्ड, लेमन। एंड जो बॉटम की बात करें, आप ज्यादा बॉटम डार्क नहीं चूज करें। आपका अगर डार्क कलर है, आप ऑलरेडी आप सोचिए थोड़े से ब्लैक है, आप ब्लैक पहने तो वो आपको और कलर को डार्क बनाएगा। तो ट्राई लाइक आप बॉटम्स में जा सकते हैं, ग्रे, टील कलर, यू नो टील कलर ब्लूइश के अंदर आता है टील, थोड़ा सा डार्क भी नहीं होता, मीडियम टोन का ब्लू होता है, दैट इज कॉल्ड टील कलर। चारकोल का जो कलर होता है वो पहन सकते हैं क्या? और मान लीजिए जैसे ओकेजन के अकॉर्डिंग आपने बोला, काफी अच्छा सवाल है, क्योंकि हम दो ओकेजन जाते हैं, एक मेरे फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है और एक मेरे बॉस की यहाँ कोई पार्टी है या मेरे ऑफिस की पार्टी है, और एक मतलब हम लोग किसी इवेंट में जाते हैं, तो फिर चीजों में ये देखा जाता है कि आपको ज्यादा तैयारी करनी पड़ती है। जैसे ऑफिस का कोई प्रोग्राम हुआ और मैं जब अपने फ्रेंड के साथ में जाना चाहता हूँ तो आई वॉन्ट टू बी लिटिल कंफर्टेबल, तो दोनों में जब सेलेक्ट करूँ अपने ड्रेसिंग को किस बेसिस पे करूँ? सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, आज हमेशा याद रखना, आप लोग अपनी स्टाइल बना लीजिए। मैं लिटरली बता रही, मैं किसी का स्टाइल कॉपी नहीं करती, मैं खुद का स्टाइल बना के रखती हूँ कि मेरे पर कौन से बेस्ट लगेंगे कपड़े, कि मैं कहीं पे भी जाती हूँ, सपोज बर्थडे पार्टी की बात है तो ओकेजन इज लाइक हैपनिंग है, तो वहां पे आप देख सकते हैं कि कलर कॉम्बिनेशन हम थोड़ा अच्छे कलरफुल भी पहन सकते हैं, थोड़ा इनफॉर्मल क्लोथ्स के लिए जा सकते हैं आप वहां पर, और थोड़े हील्स, गर्ल्स है तो गाउन्स पहन सकते हैं, स्कर्ट्स पहन सकते हैं एंड ड्रेसेस पहन सकते हैं, जीन्स टॉप जो आपको अच्छा लगे, थोड़ा पार्टी वेयर लुक दे, वो आप बर्थडे पार्टीज के अंदर पहन सकते हैं। अगर हम बात करते हैं मीटिंग्स की, मीटिंग नाम लेते याद है फॉर्मल लुक में कलर होता है थोड़ा सटल ब्लू, ब्लैक, इस तरीके से आप वहां पे कैरी कर सकते हैं। फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं तो फंकी कैजुअल लुक। और देखिए अगर आपको नॉलेज नहीं है तो पूरा आजकल गूगल है, यूट्यूब है, लोग अवेयर नहीं है इस चीज के लिए, वो चाहते हैं मेरे पास आते मैम हमें चेंज होना है, बट दे आर नॉट ओपन टू टेक नॉलेज। आज आप कितने लोग मेहनत करते हैं, आप बोलते हैं मैम पर्सनालिटी चेंज करनी हमें, बट कोई मेहनत नहीं करना चाहता कि इतनी सी भी नॉलेज दे दे। आपको पता है आप में ये कमी है, बट नोबडी इज पुटिंग एफर्ट्स कि हम इम्प्रूव हो जाएं। मैम आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, जैसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम मेरे फ्रेंड्स को आती है, दैट इज अबाउट द हेयर फॉल। तो हेयर फॉल के लिए मैं जैसे आपने बताई एक वो प्रॉब्लम होती है,
हम चाहते हैं अगर मुझसे सेटिंग नहीं हो पाती हेयर स्टाइल के अंदर, तो मैं कैसे इसको बैलेंस करूँ? देखिए हेयर फॉल में तो मेन तो क्या होता है कि जैसे बालों में जब अपन कहीं जाते हैं जब बहुत डस्ट वगैरह लग जाती है तो हमारा रूट्स कमजोर हो जाता है। तो रूट्स कमजोर होने से हमारे बाल गिरते हैं। ताकि स्पा में आप क्या करवाना चाह रहे हो, आपने बोला मुझे हेयर फॉल का स्पा चाहिए, जो आपको बताने वाला अगर एक्सपर्ट बताएगा तो हेयर फॉल स्पा देगा। अगर वो लोग बोले कि आप स्पा दे दीजिए तो नॉर्मल स्पा देगा। स्पा में भी क्या पूरा तरह से ट्रीटमेंट होते हैं। अगर आप किचन ऐसी कौन सी प्रॉब्लम होती है जो गर्ल्स में ज्यादा होती है और बॉयज में ज्यादा होती है? पहले गर्ल्स में पिंपल्स की प्रॉब्लम बहुत होती थी, लेकिन अब वो कम हो गई है, लड़कों में ज्यादा हो गई है। ये अभी बहुत दिनों में मुझे साल भर से ही देखने को मिला है। गर्ल्स में आजकल पिगमेंटेशन हो गया है क्योंकि वो अपने फेस पे बहुत ज्यादा कॉस्मेटिक यूज करने लगी है। जैसे कि उन्होंने देखा कि अरे टीवी पे आज एक लिप कलर आया है, उन्होंने लगाना शुरू कर दिया, चाहे वो सूट कर रहा है या नहीं कर रहा। उनको लगा ब्लशिंग लगाया हुआ है करीना कपूर ने, वो लगाना शुरू कर दिया। अब जब आप अपने फेस पे ब्लशिंग वगैरह करोगे तो नेचुरली सिबम आएगा फेस पे, तो वो कहाँ निकलेगा, चेहरे पे निकलेगा, वहां वो पिंपल्स हो जाएगी। उसके लिए पहले तो ये है कि अब लड़कियों को क्या हो गया है कि अपने वो पिगमेंटेशन तो डार्क सर्किल हो जाता है, सन स्क्रीन लगाती नहीं है। बॉयज लोगों में आजकल पिंपल्स ज्यादा आने लगे हैं। और अगर सन का स्किन की बात करें तो एक फैक्टर आता है उसमें SPF। ये SPF क्या होता है? HPF ठीक है, क्या होता है ना वॉल्यूम, जैसे कितना HPF 30, 20, 50 आप लोग पढ़ते होंगे जब लेने जाते हैं ना कि SPF 50 दे दीजिए। 50 का मतलब होता है कि आप कितने घंटे सन के अंदर हो। पीएच वैल्यू, पानी और अपना पीएच वैल्यू एक बैलेंस होता है अपनी बॉडी के अंदर, वो अपना लेवल बनाता है, ये होता है वो उसमें। और ये अपन को जब सनस्क्रीन लोशन लेना होता है तो अपन ये देखते हैं कि पीएच 10, पीएच 30, 40, उसका मतलब ये होता है कि अगर 10 वॉल्यूम का है तो वो कम देर के लिए है, 20 वॉल्यूम है तो वो थोड़ा सा और देर के लिए। लोगों जो ऑफिस वर्कर है उनको 50 लेना चाहिए। और आप ये सोचें कि आपको सन प्रोटेक्शन सिर्फ धूप से ही होता है, ऐसा नहीं है, लाइट से भी होता है। ऑफिस में जो लेडीज काम करती है उनको ऑफिस में लाइट के बीच में रहती है तो सन को भी पिगमेंटेशन होता है, तो धूप से भी लाइट से भी होता है। SPF 50 लगाना चाहिए। और आप जैसे पिगमेंटेशन की आप बात कर रहे हैं कि लेडीज में बहुत ज्यादा है, तो कुछ इस तरह रहता है कि हमारे पैचेस कई बार पड़ जाते हैं, इसी को पिगमेंटेशन बोला जाता है। हाँ, उसको बोलते हैं तो क्लाज्मा। और ये जनरली क्या होता है जो धूप में बहुत ज्यादा रहते हैं उनको होता है। और आफ्टर जो लेडीज को बहुत ज्यादा दिखता है वो आफ्टर डिलीवरी के बाद होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में हार्मोन्स चेंज होते हैं। उस वक्त हम लोग इतनी लेडी केयर नहीं कर पाती तो वो प्लाज्मा जमता चला जाता है। तो बहुत से लोगों के तो आफ्टर डिलीवरी बाद खत्म हो जाता है और बहुत से लोगों के रह जाता है। अगर हमें मतलब मेरे जैसे दोस्तों को या मेरे स्टूडेंट को जो यहाँ पर हैं उनको अगर पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है तो निकाल आउट करके निकाल सकता है उनको। अगर अपन बात करें घर की चीजों की, किचन से संबंधित, तो अपने पास बहुत सारी चीजें हैं। आप मसूर की दाल होती है उसको पीस के अपने चेहरे पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। आप घर में सब्जियां आती हैं, मूली खूब खाएं। और अगर जैसे कोई सब्जी है, पालक है, पत्ता गोभी है, अपन वॉश करते हैं सब्जी बनाने से पहले, तो पहला पानी तो उसका फेंक देना चाहिए, लेकिन सेकंड और थर्ड बार जो पानी में अपन वॉश करते हैं, मतलब अच्छी तरह से सब्जी को साफ करते हैं, उस पानी को अपने चेहरे पे लगाना चाहिए, उससे अपना चेहरा धोना चाहिए। उसमें क्या है, जो उसके जो पार्टिकल जो भी होते हैं अपने फेस पे आते हैं, तो बेस्ट रहता है। और फिर हमारे पास अगर आपके पास फिर भी कोई सॉल्यूशन ना मिले तो सॉल्यूशंस जितने भी सॉल्यूशंस हैं वो सब जिंदाबाद, वो आप पर ट्रीटमेंट करेंगे पिगमेंटेशन का। उसमें नाम जैसे पिगमेंटेशन अगर मुझे है बहुत टाइम से, तो क्या कोई ऐसा कॉस्ट इफेक्टिव हमारे पास में प्रोसीजर है जो सर्विस प्रोवाइड करवा सकते हैं? या नॉर्मली माना जाता है कि अगर मैं सर्विस में जा रहा हूँ तो आई हैव टू स्पेंड अ लॉट, बहुत पैसे देने पड़ेंगे, ऐसा है मैम? या फिर कॉस्ट इफेक्टिव भी हमारे पास में सॉल्यूशन? हाँ बिल्कुल, अगर आपको लगता है कि मेरे पिगमेंटेशन में बहुत ज्यादा पैसा है तो अपने पास ऐसी चीजें हैं मार्केट में जो कम बजट में भी हो सकती है। और हमें सेकंड प्रॉब्लम जो मोस्टली आती है, ये टेंथ में देखें आप या ट्वेल्थ में भी होती है, ये रिंकल्स की होती है। एक अर्ली एज में ही रिंकल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसके क्या रीजंस होते हैं और कैसे मैं इसको रोक सकता हूँ? आजकल चिंता का विषय तो सभी के लिए है, चाहे वो बच्चे हो चाहे बड़े हो। बच्चों को चिंता रहती है कि मेरे को पास होना है, एग्जाम में पास होना, उनकी टेंशन रहती है।
तो जितना टेंशन करोगे उतने रिंकल्स आएंगे। और हम लोग क्या करते हैं, अब योगा देखना है अपने की, योगा आपको बताया गया कि मुझे योगा करना है, लेकिन हमको ये नहीं मालूम तुमको करना कैसे चाहिए। सेम चीज फेस पे भी हमारी मसाजेस होती हैं। हमने सैलून से एक लड़की बुला ली घर पे कि मेरा घर पे आकर फेशियल कर जाना, और वो फेशियल करने आएगी, वो थप्पड़ मसाज कर रही है, आपको नहीं मालूम है कि मसाज किस तरह से होनी चाहिए, तो ऑटोमेटिकली रिंकल्स आएंगे। ये है। तो अगर आप क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, लाइक जो यंगस्टर्स हैं जो ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट अफोर्ड नहीं कर पाते, उनके लिए कौन सी ब्रांड है जो उनको चूज करनी चाहिए फॉर क्रीम्स? और लाइक जरूरी है कि हम एक्सपेंसिव यूज करके ही हम अपना मेकअप कर सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो इस सजेशन में हूँ कि आप लोग घर की चीजें यूज करें। मैं सैलून चलाती हूँ, लेकिन मैं कहूँगी घर की, जब आपकी रसोई में, आपके गार्डन में ये सारी चीजें हैं, आप उस पर अप्लाई करिए। नेचुरल चीजें तो बहुत लाभ की होती है। जब कुछ भी नहीं होगा तो हम सैलून वाले बैठे और करेंगे उसका। सर एक बहुत अच्छा सवाल यहाँ चल रहा है, जैसे हमने रिंकल्स की बात करी, तो आजकल लोग यंग दिखना चाहते हैं, क्या ऐसा कुछ आपके पास में भी आती है? सर के पास रिंकल्स नहीं आते होंगे? सर के पास मेरे पास रिंकल्स नहीं आते। मेरे पास लोग कहते हैं कि मेरे गाल चबी हैं, बहुत है, मेरी डबल चिन आ गई है। These are the main problem people come with. बट जैसे ही आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपका ओवरऑल बॉडी से फैट कम होगा, तो डेफिनेटली वो फेस पे भी आपके कम होगा। तो सर ऐसे क्या टिप्स हैं, जैसे एक ट्रेंड है कि हम यंग दिखना चाहते हैं, हम एनर्जेटिक दिखना चाहते हैं, लेकिन एक डिस्कशन हुआ, आपने बताया कि 20 मिनट आपको लगातार नॉन स्टॉप वर्कआउट करना है। तो एक कॉन्सेप्ट आजकल ये भी चल रहा है कि जैसे हम लोग यूज कर रहे हैं, हमारे फाउंडर हैं आदि गुरुदास जी, वो बताते हैं कि आप 50 मिनट कोई भी काम कीजिए, 10 मिनट आप एक्सरसाइज कीजिए। तो क्या सर ये कॉन्सेप्ट सही है? या ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। जब आपके पास आप देखते हैं कि आप रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं मिल रहा है, आप अगर एवरी आवर्स आप 10 मिनट्स का थोड़ा सा वॉक करेंगे, कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे, तो आपका बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा, आपका प्रोडक्टिविटी हाई होगा, आपका कॉर्टिसोल लेवल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रेस दैट विल आल्सो गो डाउन। अगर जैसे आपने स्ट्रेस में कर रखा है, स्ट्रेस के ट्रॉमा में कर रखा है, तो मोस्टली जब जिम में जाते हैं तो जिम के अंदर कई बार ऐसे केसेस भी आते हैं आपके पास में जिसमें वो डिप्रेशन में होते हैं बहुत ज्यादा। काफी सारे केसेस ऐसे होते हैं कि पीपल आर इन डिप्रेशन, दे आर टेकिंग सर्टेन काइंड ऑफ मेडिसिन फॉर इट। इवन मैं देखता हूँ काफी लोग ऐसे आते हैं जिनको स्लीपिंग डिसऑर्डर होता है, दे कैन नॉट स्लीप वेल। तो जैसे आप देखते हैं कि मैं अभी आपको बता रहा था कि जो हमारा स्ट्रेस होता है दैट इज स्ट्रेट रिलेटेड टू कॉर्टिसोल बिल्डअप इन द बॉडी। Cortisol is the stress hormone. If it is high in your body, neither will let you sleep, nor it will let you digest your food, nor it will let you enjoy your life, because constantly your body is into stress. So exercise is very important to reduce your cortisol stress. It could be one, like if you are not able to take out 45 minutes in one go, as he said that the organization founder has developed this kind of program where every hour you are doing 10 minutes activity. That is another option, and it is a very good thing. और आपने जिस तरह की बताई थी कि आजकल जैसे मैंने देखा सबसे पहले ट्रेंड स्टार्ट करा सलमान खान ने कि टिक टैक बनाने में, फिर धीरे धीरे शाहरुख खान आया, उन्होंने कहा 8 टैक बनाने। तो समथिंग जो ये ट्रेंड है जिसको हम फॉलो करते हैं, और मैम ने एक चीज बहुत अच्छी बोली कि आप अपना ट्रेंड बनाइए। तो क्या यह एक कारण है कि मैं ट्रेंड को फॉलो कर रहा हूँ या हम ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं जो हमें डिप्रेशन की तरफ ला रहा है? यस, देखिए मैं अभी आपको एक चीज बताई थी कि हम सभी स्पेशल हैं, हमारी सबकी अपनी डिफरेंट क्वालिटीज है जो किसी और में नहीं है। अगर आप किसी को फॉलो करने लगते हैं तो इट इज कंप्लीटली रॉन्ग। अगर हम देखें कि हम जब किसी को फॉलो करने लगते हैं तो जो हमारी क्वालिटीज होती है ना वो डोरमेंट हो जाती है, और जो चीज आप में है ही नहीं नेचुरली उसमें आप डबल एफर्ट्स करेंगे फिर भी आपको उतना अच्छा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो उसका नेचुरल है और आपका जो नेचुरल क्वालिटीज है उन पे आप वर्क कर नहीं रहे हैं। दैट इज द फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड, आप देखते हैं कि जेनेटिकली सबका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, और
अभी हमने देखे बहुत सारी मूवीज ऐसी आई है जिनमें उन्होंने स्पेशली जो रोल थे उसके लिए उन्होंने स्पेशल साल और 2 साल प्रिपरेशन की है, जिसमें भाग मिल्खा भाग आपने देखी होगी कि उसमें उसने पूरा बहुत अच्छी बॉडी बिल्ड की है। जेनेटिकली वो ही इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, बट फॉर दैट मूवी इफ यू सी हिम टुडे इज अगेन स्विमिंग, he has taken certain kind of steroids because that was the demand of the role. He has to look that way. आप देखेंगे कि किसी भी स्टार को आप देखेंगे कि वो हर रोल के अकॉर्डिंग अपना स्ट्रक्चर बॉडी का चेंज करते हैं। दैट इज नॉट नेचुरल एंड दैट कैन नॉट बी मेंटेन फॉरएवर, इट इज जस्ट फॉर टाइम बीइंग। तो यही रीजन होता है कि जैसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं या हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पहले ओबेसिटी कंट्रोल के लिए कुछ करा, 15 to 20% उन्होंने कम करा अपना वेट और जब उन्होंने एक्सरसाइज पूरी दोबारा से उनका जो फैट था वो इंक्रीज हो गया। क्या यही वजह है? यस, काफी लोग क्या करते हैं कि स्टेरॉइड्स यूज करते हैं मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने के लिए। इसके अलावा फैट बर्नर काफी सारे एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स अवेलेबल हैं। सो दोज स्टेरॉइड्स आर नॉट गुड एट ऑल विद योर हेल्थ। जब आप वो ले रहे हैं आपका वेट कम रहेगा, जैसे ही आप वो प्रोग्राम ड्रॉप करेंगे अगेन यू विल पुट ऑन वेट। सो आप नेचुरल वे वेट लूज करें और नेचुरल वे ही उसको मेंटेन करें। आप ऐसे किसी प्रोडक्ट पे नहीं जाएं। आपने देखे हैं अभी हम पेपर में भी बहुत सारे ऐड देखते हैं कि आप ये वाला सप्लीमेंट ले, विल बिल्ड मसल्स, आप ये वाला लें, इससे आपका फैट कम हो जाएगा। बट ऑल दीज प्रोडक्ट्स हैव साइड इफेक्ट्स। सर आप मेरे को आइडिया है, देखने में नहीं लगता कि आपकी एज इतनी होगी जितनी अभी है। और सेकंड जब मैंने आपसे बात करी, कल भी बात हुई, आज भी हुई, जो आपकी फेसबुक पे फोटो थी उससे ज्यादा जंग लग रहे हो आप मुझे। तो मैं सिर्फ एक चीज जानना चाह रहा हूँ सर कि आपने यूएस की जो स्ट्रेस और ट्रॉमा की एक्सरसाइज आप करवाते हैं, तो थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, आप कुछ एक्सरसाइज हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं? यस यस, वी कैन शेयर दोज एक्सरसाइजेस। और इसमें पहला अभी अपन ने देखा कि आपने जैसे आपने सेशन स्टार्ट किया तो आई जस्ट फॉरगॉट योर नेम, ही हैज सजेस्टेड डीप ब्रीदिंग विद द म्यूजिक, यू नो। सो इसको हम डायफ्राग्राम ब्रीदिंग बोलते हैं। जनरली हम क्या करते हैं कि डे टू डे लाइफ हम चेस्ट ब्रीदिंग करते हैं। तो जैसे ही आप डायफ्राग्राम ब्रीदिंग करते हैं, इसका सिंपल मेथड है कि जब भी आप इनहेल करें तो लेट योर स्टमक कम आउट। जनरली क्या होता है, कॉन्शियस होकर हम स्टमक को से सॉफ्ट करके रखते हैं, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। एवरीबॉडी विल टेल यू कि आप एकदम ऐसे टाइट खींच के रखो। आई वुड से कीप योर cavity absolutely relaxed. So when you keep your cavity relaxed, volume of the oxygen will increase, and the moment your volume of oxygen increases, we have two nature. One is it is, I'm talking about the neuroscience. One is the sympathetic and another is the parasympathetic. So sympathetic is the fight and flight response. The mind is not working at all. So when you are not having deep breathing, your sympathetic will take over. If you are having deep breath and you are completely, absolutely relaxed, your parasympathetic is active. So when your parasympathetic is active, you know, it gives you thousands of benefits. Your skin will glow always, your body will digest food faster, and that energy will be used for. अब बात दूसरी रही कि कॉम्प्लेक्शन को लेके हम प्रोडक्ट्स कैसे बाई करें। हमेशा जब भी कोई प्रोडक्ट्स आपको फाउंडेशन या कुछ लेना है तो सबसे अच्छा अपना टेस्ट करने का अपना हाथ होता है। आपके पीछे वाला क्वेश्चन जो रहता है उस पे आप क्रीम जो भी फाउंडेशन ले रहे हैं उसको अपने हाथ पे एप्लीकेशन करें और तब तक उसको हाथ पे लगाते रहें जब तक वो मर्ज ना हो जाए। अगर वो 1 नंबर लाइटर है तो आपके फेस पे जाएगा। ये टेस्टिंग का सबसे अच्छा तरीका है। नहीं तो आप किसी भी मार्केट में जब जाएंगे वो अपना उसका इंसेंटिव बनता है तो वो अपने को चेक रहता है कि भाई ये भी ले लो, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा। लेकिन मैंने सबसे अच्छा तरीका आपको बताया कि अगर कभी कोई प्रोडक्ट खरीदना हो तो अपने हाथ के पीछे वाले पोर्शन में उस फाउंडेशन को लगाएं और अपनी स्किन के अकॉर्डिंग 1 नंबर लाइटर लें। जब तक मर्ज करते रहेंगे वो एक नंबर छोड़ देगा कि वो आपके फेस पे जाएगा। और हम कॉर्पोरेट में जैसे जाते हैं हम या फिर वर्किंग में जाते हैं तो फाउंडेशन बहुत ज्यादा लगाना पड़ता है। तो डेली हम जैसे फाउंडेशन अगर यूज करते हैं तो कोई स्किन में हार्मफुल रहेगा या ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो मैं फाउंडेशन यूज भी करूं और मेरी स्किन को हार्मफुल भी ना करे? सबसे अच्छा है लैक्टोकैलामाइन।
हो जाता है लाइक? नहीं, आप एक काम करें, अगर डाई लगता है तो सबसे अच्छा है बादाम रोगन ऑयल आता है, ओके है ना, उसकी 1 ड्रॉप, उसकी 1 ड्रॉप आप उस लैक्टोकैलामाइन के साथ मिक्स करें। और लैक्टोकैलामाइन भी 3 फ्लेवर में आने लगा है। एलोवेरा भी फ्लेवर में आता है और स्किन वाला जो कलर आता है वो 3 फ्लेवर है, तो आप एलोवेरा का भी लगा सकते हैं। मैम उससे कोई वैसे कोई साइड इफेक्ट? नहीं, लैक्टोकैलामाइन से कोई साइड इफेक्ट नहीं, वो आपका एसपीएफ का भी काम है। और अगर आप कुछ और भी है जैसे क्लोव करके भी कल आता है, वो भी एसपीएफ का काम करता है, तो आप ऑफिस में वो भी लगा सकती हैं। और आजकल तो मूव आ गए हैं, मूव एप्लीकेशन कर सकते हैं फेस पे, जो कि बहुत लाइटर रहते हैं और अपनी स्किन से 1 नंबर टोन लाइटर ही अपने फेस पे अप्लाई करें, जिससे सामने वाले को भी नहीं लगे कि आपने फेस पे बहुत सारा फाउंडेशन लगाया। हम सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, लाइक आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल लगा लेते बट बहुत ज्यादा ऐसा जब पोत किया है, वो सबसे बड़ा फाउंडेशन या लैक्टोकैलामाइन का सबसे मेन क्या है आजकल, क्या हो गया है कि हमको लगता है कि जैसे मेकअप कराने हम आए और सांवली स्किन वालों को लगता है कि इसको मैं गोरा कर दूं, तो काले को गोरा करने में वो क्या करते हैं, वो देखते नहीं कि हमने फाउंडेशन कौन सा लिया, तो लगा दिया और चेहरा हो गया वाइट। जब फोटो देखता है वो देखता है कि गर्दन तो उसकी काली है और फेस उसका गोरा है। तो अब तो क्या है, ये आजकल मैंने बताया ना, सबसे अच्छा तरीका है कि अगर आप मेकअप कराने जाए, मैं बोलती हूँ कि आप जिस भी सैलून में जाते हैं, और मैं चैलेंज ये बोलूंगी कि जो भी आपका करने वाला है उसको बोलो कि पहले जो मेरे को फाउंडेशन लगा रहा है मुझे चेक कर लेने दो, खुद बोलो और अपनी गर्दन पे अप्लाई करो। अगर वो आपकी गर्दन पे मिक्स हो रहा है तो आपके फेस पे जाएगा, फिर आप बोलो हाँ मेरे करो ये, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नॉलेज नहीं है। आजकल सब मेकअप आर्टिस्ट हैं, जिसको लाइनर लगाना आ गया, जिसको काजल लगाना आ गया और लिप कलर लगाना आ गया, वो सोचता है मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ। तो इसलिए मैं आपको खुद बोलती हूँ, अपनी सैलून की मैं खुद ये बता रही हूँ कि अगर आपके पास किसी के पास आप मेकअप के लिए जा रहे हो तो आप कहो कि नहीं मैडम, आप जो फाउंडेशन लगा रहे हो मुझे पहले गर्दन पे चेक कर लेते, और मैंने आपको बताया कि उसको इतना मर्ज करो कि वो स्किन के अंदर इंडेक्ट हो जाए और 1 नंबर लाइटर दिखे। मैम इसमें जैसे आपने हैंड का बताया, आपने गर्दन का बताया, फाउंडेशन के लिए उसी तरीके से हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, जब जाते हैं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो वो स्किन इनसेंसिटिव होता है, उनकी स्किन में प्रॉब्लम्स आती है। तो अगर मैं कोई भी कॉस्मेटिक हम परचेज करने के लिए जा रहे हैं तो क्या कोई तरीका है जिससे हम चेक कर सकते हैं, जैसे फाउंडेशन का आपने बताया गर्दन और हाथ का? बिल्कुल, मैं जो बात बोलूंगी पहले तो अपने हेयर कलर के लिए बोलूंगी। बहुत लोगों को हेयर कलर से एलर्जी होती है, उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है टेस्टिंग का, कि आप किसी भी अपने घर पे एक डिब्बा बाई करके लाते हैं, रेवलॉन का लाते हैं, लॉरियल का लाते हैं, तो उसको सेम प्रोसीजर होता है। अच्छा ये मैं और बता दूं, जो लेडीज हैं वो तो जानती हैं कि हम घर में कैसे हम घर में जब बेसन की पकौड़ी बनाते हैं ना, तो जितना थिक रखते हैं उतना ही हमें कलर का रेशो रखना होता है। जैसे 1 चम्मच हमने क्रीम लिया और 1 चम्मच हमने लोशन लिया, उसको ऐसा ही मिक्स करते हैं जैसे मैंने एक उदाहरण दिया है, क्रीम जैसे हम पकौड़ी बनाते हैं ना, पकौड़ी का बेसन बोलते हैं, सेम वैसा ही रहता है। तो आप उसको लगा के अपने पीछे बालों के 10 नीचे गर्दन के पास 1 इंच के बराबर आप लगा के रखें, और उसको 24 घंटे मतलब लगाने के 15 मिनट बाद उसको वॉश कर लें, और 24 घंटे आप ये देखें कि मेरे को कोई खुजली तो नहीं हो रही, मुझे लाल स्पॉट तो नहीं आ गया, क्योंकि बहुत लोगों को कलर से एलर्जी होती है। और हिना मैं इतना बोलूंगी, जो लोग है ना ये डाई यूज करते हैं, इस डाई को अवॉइड करें, जिससे आईज पे इफेक्ट आता है, 100% आता है इसमें। क्योंकि पहले की जब दादी ये नानी लगाती थी तो उनकी आंखें बहुत कमजोर हैं, जैसे आजकल के बच्चों के पढ़ के कमजोर है तो ये चीज है। दूसरा स्किन के लिए मैं बोलूंगी, अगर स्किन पे आप कोई चीज अप्लाई कर रहे हैं और आपका वहीं का रेड स्पॉट आ गया, इसका मतलब वो आपको हार्मफुल है, वो आपको सूट नहीं करता। कभी कभी क्या होता है, मैं आपको एक छोटी सी बात और बता रही हूँ, आपने फेशियल कराया और फेशियल करा के आप पार्लर से निकले और आपने देखा कि मेरा चेहरा लाल हो गया, तो आप बोलोगे सैलून वाले पे गुस्सा करने लगोगे कि मेरे को है ना चेहरा मेरा लाल हो गया, मेरे दाने आ गए, मेरे ये आ गए। उस समय आप कूल डाउन रहें, क्योंकि बहुत से सैलून्स को नहीं पता है कि आपके फेस पे क्या जाना है। वो सिर्फ ये पड़े होते हैं कि ये किट है लगा दो, एलोवेरा किट है ये लगा दो, किसी ने बोला कि ये प्रोडक्ट्स बेचने आया कि मैडम ये बहुत अच्छा चल रहा है आप इसको लगाओ, और हम लोग क्या लालच में लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन आपके पास सबसे अच्छी तरीका बताऊं, अगर कभी भी सैलून जाएं तो पहले बोले मेरी स्किन को चेक करो,
स्किन का चेक करने का तरीका वही है कि वो क्रीम जो एप्लीकेशन करेगी उसको लगा के 5 मिनट छोड़ो या हाथ पे एप्लीकेशन कराओ। अगर आपको खुजली इरिटेशन कुछ हो तो आपको सूट नहीं करेगा, और अगर आपको हो जाता है तो उसका मैं एक बात बताती हूँ। घर जाके आप गुस्सा मत करो सलोन वाली पे, आप घर जाके अपना जो आपका पतंजलि का एलोवेरा जेल है उसको अपने फेस पे अप्लाई करो और ठंडा पानी लगाओ और मुल्तानी मिट्टी लगाओ, आपका फेस वापस वही हो जाएगा जो पहले था। हम पतंजलि की आपने बात करी तो आजकल बहुत ट्रेंड में है, लोग कहते हैं कि बहुत हर्बल है, तो क्या रियल पर भरोसा कर सकते हैं? अच्छा है प्रोडक्ट? देखो मैं इसलिए बोल रही हूँ पतंजलि क्योंकि आजकल सबको रामदेव बाबा ने अपना भक्त बना रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एलोवेरा जेल आपकी और एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है आजकल की परफ्यूम, बोला जाता है कि आप ऐसा स्मेल करते हैं वैसे आपकी पर्सनैलिटी है। बिल्कुल। तो मैं अगर अपनी पर्सनैलिटी को पहले कैसे जानूं और फिर उसके बेसिस पे कौन सा परफ्यूम परचेज करूं, कौन सी स्मेल सेलेक्ट करूं, थोड़ा सा बताइए। परफ्यूम बहुत जरूरी है। आप लोग कौन कौन यूज करते हैं परफ्यूम, सबसे पहले बताइए कौन यूज करता है परफ्यूम। एक तो सबसे बड़ा पॉइंट देखिए कि अगर आप परफ्यूम चूज कर रहे हैं कहीं पर भी जाकर, तो आप उन मतलब उस पर्सन से पूछिए कि सबसे ज्यादा लेटेस्ट में क्या चल रहा है, लेटेस्ट ट्रेंड के अंदर। हम सोचते हैं कि एक बॉटल अच्छी परफ्यूम की खरीदी 3-4 हजार के हमारा काम हो गया, बट ऑलवेज रिमेम्बर, ऑलवेज हैव 3-4 इन ऑप्शन, डिफरेंट रखेंगे तो आप अपनी स्मेल से भी बहुत लोगों को इम्पैक्ट करते हैं। तो एक ही परफ्यूम में स्टिक ना हुए, काफी परफ्यूम्स खरीदिए और उसको रोटेशन में यूज करिए। हाँ, लेकिन जैसे पर्सनैलिटी मेरी बहुत ज्यादा डल है, मान लीजिए मैं बहुत टाइम नेचर का हूँ और मेरे को ये तो करना है मेरे पर्सनैलिटी कि आई एम रियली एक्सट्रोवर्ट, तो क्या ऐसी कोई पर्टिकुलर स्मेल होती है? परफ्यूम में आप परफ्यूम के थ्रू नहीं दिखा सकते कि आप शाय हैं या एक्सट्रोवर्ट हैं, बट हाँ आप थोड़ा सा अच्छा स्ट्रॉन्ग स्मेल ले सकते हैं। लाइक आप जब भी, एक तो याद रखिए जब परफ्यूम लगाएं तो हम बोलते हैं बहुत ज्यादा परफ्यूम लगाएंगे तो ज्यादा लोगों को स्मेल आएगी। मैं आपको एक टेक्निक बताती हूँ। 4 पल्स पॉइंट होते हैं, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक रिस्ट पर और ये वाली रिस्ट पर। केवल 4 जगह आप परफ्यूम लगाएं। नेवर यूज परफ्यूम ऑन योर होल बॉडी। पता पॉइंट, कोई होता है ना शर्ट में भी लगा रहे, साइड में भी लगा रहे। परफ्यूम का एक ही तरीका होता है, 4 पल्स रेट, पल्स जहां पर है, साइड, लेफ्ट साइड, योर रिस्ट, बोथ द रिस्ट। और मैम अगर हम बात करें इसके आगे, मैं अगर ड्रेसिंग प्रॉपर है मेरी और मेरे पॉस्चर सब, मेरा जो हैंड मूवमेंट है वो अच्छे नहीं है हमारे, तो अगर मैं ऑफिस में जा रहे हैं हम लोग या हम किसी पार्टी में जा रहे हैं, तो ऐसे कौन से मूवमेंट हैं जो हमें अवॉइड करने चाहिए? सबसे बेसिक जो रूल होता है बॉडी लैंग्वेज का, मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी मैं बताती हूँ, सॉफ्टन प्रिंसिपल होता है। यू नो सॉफ्टन, कौन बहुत लोग होते हैं कहीं जाते हंसते ही नहीं है, नेवर स्माइल, मतलब बैठे रहते 2 घंटे तो बैठे, तो मतलब एक स्माइल तो पास। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बॉडी लैंग्वेज में अगर हम बात करें, योर स्माइल। सेकेंड होता है योर बॉडी लैंग्वेज में होता है क्लोज डाउन। ठीक है, मैं आपको बताती भी हूँ, अगर मैं कहीं पर भी जाती हूँ, and if I am talking like this and if I am connected to you and if I am talking to you using my hands, so that is a better body language. तो जब भी आप किसी से बात करें, आप कभी भी अपना बॉडी लैंग्वेज को क्लोज न रखें, ऑलवेज हैव अ ओपन बॉडी लैंग्वेज। आप किसी से भी बात कर रहे हैं तो हमेशा फॉरवर्ड लीन जरूर करें। एक होता है ऐसे बॉडी लैंग्वेज, हम ऐसे बात करते हैं कि बताइए आपको क्या बताना। एक होता है कि आप थोड़ा झुक के बात करते हैं, सो दैट इज फॉरवर्ड लीन। अगर हम बात करें कहीं पर भी जाते हैं, आपको हैंडशेक के थ्रू इमोशनल टच दें ताकि आप अपना एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ पाए। और हम बात करते हैं नॉड, कोई भी होता है बैठे रहते हैं 1 घंटे तक, नो रिस्पॉन्स ऑफ फेस, या तो यस करिए या फिर नो करिए, सो ऑलवेज नॉड। फर्स्ट मैं इंप्रेशन की बात करूंगी। अगर आप कहीं जा रहे हैं और इंप्रेशन अपना लास्ट करना है तो हमेशा एक तो लोगों को कॉम्प्लीमेंट दे। Like if you are meeting, sir, you are looking good, genuine compliment जो हाँ appropriate हो,
उसके बाद जब भी कम्युनिकेट करें तो ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल रहे, जब आप बोल रहे तो आप सोचे कि हाँ क्या आप सही बोल रहे। कोई कोई लोग होता है हाय हेलो अजीब सी बातें करने लग जाते हैं, सो नेवर डू दैट। एंड आप अपना और बॉडी लैंग्वेज को ओपन रखें, वो सबसे मेजर इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी लैंग्वेज में। कहीं भी मीटिंग्स के लिए जाए ज्यादा क्लोज नहीं रखें, क्योंकि वो बॉडी लैंग्वेज होता है आपका फियर का, नर्वसनेस का। आप खुद नोट कर लेना कि जब भी आप नर्वस फील कर रहे होंगे ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी श्रिंक हो जाएगी। एंड व्हेनेवर यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट योर बॉडी इज ओपन, लाइक थोड़ा सा खुले रहते हैं। ऐसे कौन सी दो मेरे पास प्रोडक्ट होने चाहिए? मान लीजिए मैं कहीं पे काम करने के लिए हम लोग जाते हैं, तो फॉर लेडीज ऐसे कौन सी दो प्रोडक्ट आप मानते हैं उनकी पॉकेट में होने चाहिए जिससे इंस्टेंट ग्लो आ सके या इंस्टेंट उनका जो चेंज है चेहरे का वो चेंज हो सके? क्योंकि हमें 5 मिनट का टाइम मिलता है, कभी 5 मिनट में आपको तैयार होना आपकी मीटिंग है। मैं 2 तो नहीं बोलूंगी, 3 बोलूंगी। एक हमारे पास काजल होना चाहिए, एक लेडीज के लिए, गर्ल्स के लिए काजल होना चाहिए, लिप कलर होना चाहिए और हल्का माउस होना चाहिए अगर वो फेस पे एप्लीकेशन करनी है। और सबसे मेन चीज अपने पर्स में फेस वॉश होना चाहिए। फेस वॉश का थोड़ा अच्छा, फेस वॉश मैं बॉयज के लिए भी बोलूंगी क्योंकि फेस वॉश बहुत जरूरी है। फेस वॉश आप जब भी लें, अगर ऑयली फेस है तो ऑयली के हिसाब से लें, अगर ड्राई फेस है तो ड्राई स्किन के हिसाब से। आपको मैं बता दूं, जब कभी भी टीवी के एड को देख के ना लें, उसमें लिखा हुआ रहता है ऑयली स्किन, ड्राई स्किन एंड कॉम्बिनेशन स्किन, वो आप ले सकते हैं। तो कौन सा मतलब ब्रांड? जब ब्रांड के नाम बताऊंगा, ब्रांड के नाम अरोमा में चले जाएंगे, अरोमा ब्लॉसम कुछ, टोटली हर्बल। अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा सा और उसमें जाऊं तो O3 बहुत अच्छा है, वो ऑक्सीजन बेस्ड रहता है सारा प्रोडक्ट्स। और आप उसमें अगर थोड़ा सा कम रेंज में और जाना चाहते हैं तो हिमालय, फिर पतंजलि। मैम एक लास्ट क्वेश्चन जो मैंने सर से भी पूछा, आजकल हम लोग चाहते हैं कि हम एनर्जेटिक दिखें, एक्सरसाइज कम हो रही है, तो ऐसी कौन सी टेक्निक है जो हम फॉलो कर सकते हैं? सलून के अंदर हम जाते हैं, हम डिमांड करेंगे कि हम ज्यादा यंग दिखें, ज्यादा एनर्जेटिक दिखें, ऐसी कौन सी टेक्निक है? देखिए, अगर आपको लगता है कि आजकल सभी लोग अवेयर है कि मैं यंग दिखूं, तो उसके लिए बालों की हेयर स्टाइलिंग बहुत जरूरी है। अगर आपके बाल स्ट्रेट हैं तो आप उसको कर्ल्स कराइए, अगर आपके कर्ल्स हैं तो उसको स्ट्रेट कराइए। आपको लगता है कि मेरे बालों में आजकल बन अच्छा लगता है तो बन करवाइए, उससे आपका लुक चेंज होगा और आप छोटी उम्र के भी लगोगे, उसके डिपेंड। और आई मेकअप, अगर आप मेकअप की बात करें तो इतना बोल्ड मेकअप कभी ना करें जो कि बहुत गंदा लगे, एकदम नेचुरल एंड न्यूड मेकअप होता है वो मेकअप करें, तो उससे आपका फेस वगैरह आप बहुत अच्छे दिखोगे। आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैं किस पार्टी में जा रही हूँ तो मुझे क्या ड्रेस होनी चाहिए मेरी। बहुत से लोग क्या करते हैं कि मेकअप बहुत बोल्ड करा लिया और ड्रेस बहुत नॉर्मल, तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। मतलब मैं जैसे स्पा की बात आती है, बहुत जगह बोला जाता है अलग से टेक्निक आती है, बॉडी मसाज करवाइए जिससे आप बहुत रिलैक्स होते हैं। तो क्या कुछ ऐसी चीजें हैं कि सैलून में ही जाने की जरूरत है या मैं घर पे करवा सकते हैं हम लोग? एक्चुअली में सैलून में जाके आजकल क्या हो गया है, स्पा में बहुत सारी बॉडी मसाज वगैरह जो कराते हैं उसमें हमारे पास जैसे क्रिस्टल स्पा, वो हम घर पे नहीं कर सकते। वैसे घर पे पहले के टाइम पे जब सैलून लोग नहीं जानते थे तो दादी नानी घर पे एक बुलाती थी और ऑयल मसाज, क्रीम मसाज करवाती थी। लेकिन आजकल जो चीजें हो गई हैं कि क्रिस्टल जो क्रीम्स वगैरह उसमें क्रिस्टल बनते हैं, तो वो प्रॉपर, जिनको प्रॉपर गाइडेंस होगी, जिसको पता होगा कि ये बॉडी मसाज कैसे की जाती है, वो ही कर पाएगा, तो वो सैलून में ही होगी। मैम ड्रेसिंग में हम लोग कैसे अपने आप को यंग दिखा सकते हैं? कैसे दिखाऊंगा? सी आप अगर ड्रेसिंग की बात करें तो यंग आप अपने कलर्स से यंग देख सकते हैं, बट कोई भी होता है कि मैम 50 इयर्स के हो गए, अब हम इतने ब्राइट कलर कैसे पहने, ऐसा नहीं है। देखिए आप एक्टर एक्ट्रेस को देखिए 50 हो गए, 55 हो गए, स्टिल दे आर वेयरिंग वेरी गुड कलर्स एंड दे लुक वेरी गुड।
आई एम नॉट कंपेयरिंग, बट आप अगर यंग दिखना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा अपना खुद का माइंडसेट भी, बिकॉज सी एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद योर थॉट्स ऑल्सो। जैसा आप सोचते हैं आपका वैसी बॉडी दिखने भी लग जाती है। आप सोचेंगे मैं बूढ़ा हो गया अब क्या पहनना डार्क कलर्स, नो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू कैरी आउट। बट हाँ, थोड़ा सा आपको एज का ध्यान रखना है, बट इतना भी नहीं कि आप बिल्कुल ही डल कलर्स पहनने लग जाएं। अगर आप और यंग दिखना चाहते हैं, आप फंकी कलर्स, लाइक यंगस्टर्स में बहुत है, फंकी कलर्स पहनिए, स्नीकर्स पहनिए, शॉर्ट्स पहनिए, आप अच्छी टी शर्ट्स पहनिए, कुछ नए एक्सेसरीज ऐड कर लीजिए अपने नए लुक्स के लिए। आप YouTube पे टाइप करके देख सकते हैं न्यू ट्रेंड्स के अंदर, तो उससे आपको बहुत नॉलेज मिलेगी।